we have to fight against whom? हमारी लड़ाई किसके साथ है? Number one, come in the list, is Satan. हमारे दुश्मन में सबसे पहला शैतान खुद है. Number two is Lucifer. दूसरा नंबर लूसीफर है. Number three, Ephesians chapter 6 verse 10 to 12. एफेसियों की पत्री 6वां अध्याय 3 से 10 तक. From 10 to 12. एफेसियों की पत्री 6वां अध्याय 10 से 12 तक. Ephesians chapter 6 verse 10 to 12. एफेसियों की पत्री 10वां अध्याय 6वां अध्याय 10 से 12 तक. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. इसलिए प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और इस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है. So number 3 in the list is principalities. और हमारा लिस्ट में तीसरा जो है वो प्रधानों से है. In Greek it is archas. और यूनानी में अर्खास है इसका नाम. Satan and Lucifer are given powers to these forces. शैतान और लूसीफर ने इन प्रधानों को अधिकार सौंपा है. All the power that is with Satan and Lucifer, they are given to him. शैतान और लूसीफर के पास जो अधिकार है वो ये प्रधानों के झुंड को सौंपा है. These principalities are not one, there are many. एक प्रधान नहीं, बहुत से प्रधान हैं, इसलिए प्रधानों लिखा. It is well organized. और एक अच्छे क्रम अनुसार व्यवस्थित है. There is one chief principality, and then under him there are so many principalities. एक मुख्य प्रधान है, उसके मदद के लिए उसके अधीन में बहुत से प्रधान हैं. Then comes powers. और उसके बाद है चौथा है अधिकारियां. In Greek it is exousias. यूनानी में एक्सोसियास. These principalities give their order to this executing agency. ये प्रधान उनको मिला हुआ अधिकार को काम में लाने प्रयोग करने के लिए अधिकारियों को आज्ञा देते हैं. Just like chief minister has got chief engineer under him. जिस प्रकार मुख्यमंत्री के अधीन है चीफ इंजीनियर. He will give authority. Construct a bridge here. और मुख्यमंत्री आदेश देगा कि यहाँ पर एक पुल बनाना. Then the chief engineer with all engineers come to execute that work. तब चीफ इंजीनियर अपने बाकी इंजीनियरों के साथ वो पुल का काम करने के लिए आता है. Then under them again the fifth one is powers of darkness. और पांचवा है संसार के अंधकार के हाकिम. Rulers of darkness of this world. संसार के अंधकार के हाकिम. In Greek it is kosmokratopas. यूनानी में कॉस्मोक्रेटोपास. These are the administrative powers of the world. ये संसार के शासन को चलाने वाली शक्तियां. President, Prime Minister, Chief Minister,
behind them a power is working. जो देश के अधिकार को चलाते हैं, राज्य को चलाते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उनके पीछे की शक्ति है। Satan is God of this world. शैतान इस संसार का ईश्वर है। Jesus already said he is the prince of this world. प्रभु यीशु ने खुद कहा वो इस संसार का प्रभु है। So under again the sixth one is spiritual wickedness in high places. छठा है दुष्टता की आत्मिक सेनाएं जो आकाश में है। This is called in Greek pneumatica ponerias. यूनानी में इसका नाम है न्यूमेटिका पोनेरियास। These are the forces bringing different religions, different doctrines and different kinds of spirit movement. ये वो शक्तियां हैं जो आत्मिक जगत को अपने नियंत्रण में रखती है। अलग अलग धर्म, अलग अलग उपदेश, अलग अलग शिक्षाएं लेकर आती हैं। Meditation, so many other things. ये ध्यान के तरीके, योगा, ये सब ये शक्तियों का खेल है। Then we have some more powers. इनके अलावा और भी शक्तियां हैं। 2 Thessalonians chapter 2 verse 7 to 11. दूसरा थिस्सलुनी दूसरा अध्याय का 7 से 11। 2 Thessalonians chapter 2 verse 7 to 11. दूसरा थिस्सलुनी दूसरा अध्याय 7 से 11। Yesterday I mentioned about it a little bit. कल मैंने उसके बारे में थोड़ा सा कहा। For the mystery of iniquity doth already work. Only he who now letteth will let until he be taken out of the way. And then shall the wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of this mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. Even him whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders, and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they received not the love of the truth, that they might be saved. And for this cause God shall send them delusions, that they should believe a lie. दूसरा थिस्सलुनी 2 का 7 से 11। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जैसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करे। This mystery of iniquity is the spirit of Antichrist. ये अधर्म का भेद विरोधी मसीह की आत्मा। That's what we read in Revelation chapter 13 verse 1 and 2. ये इसी बारे में प्रकाशित वाक्य 13 का पहला और दूसरे वचन में पढ़ते हैं। Revelation 13 1 and 2. प्रकाशित वाक्य 13 का पहला और दूसरा वचन। And I stood upon the sand of the sea, and saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horns 10 crowns, and upon his heads the name of blasphemy. And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion. And the dragon gave his power and his seat and great authority. तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सिंह और 7 सिर थे। उसके सिंगों पर 10 राजमुकुट, और उनके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था, और उसके पांव भालू कैसे और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपने सिंहासन और बड़े अधिकार उसे दे दिया। The spirit of Antichrist. ये विरोधी मसीह की आत्मा। Along with that, the spirit of Antichrist, there's a prophet. और इस विरोधी मसीह की आत्मा के साथ एक नबी भी है, भविष्यद्वक्ता भी है। That's we read from 13th chapter verse 11 and 12. 13वां अध्याय का 11 और 12 वचन में। 13th chapter verse 11 and 12. प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 11 और 12 वचन। And behold, another beast coming out of the earth,
and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon. And he exercised all the power of the first beast before him, and caused the earth and them that which dwell therein to worship the beast, and whose deadly wound was healed. फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, उसके मेमने कैसे 2 सिंग थे और वह अजगर के समान बोलता था। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वाले से उस पहले पशु की, जिसके प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। In Revelation chapter 17 we get more explanation about that beast with 2 horns. और प्रकाशित वाक्य 17वें अध्याय में उस 2 सिंग वाले उस जीव का और विवरण मिलता है। In Revelation 17 when we read from verse 1 to 5 we see that beast of 10 horns and 7 heads. और प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 1 से नीचे के वचनों में हम वो 10 सिंग और 7 सिर वाले जीव के बारे में देखते हैं। In order to save time I'm not going to read all of it. समय बचाने के लिए मैं वो सब नहीं पढ़ रहा। You can note it down, Revelation chapter 17 1 to 5. प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 1 से 5 तक आप लिख सकते हैं। But I just read 3 to 5. मैं केवल 3 से 5वें वचन तक पढ़ता So he हूँ। carried me away in the spirit into the wilderness, and I saw a woman sit upon a scarlet-colored beast, full of names of blasphemy, having 7 heads and 10 horns. And the woman was arrayed in purple and scarlet color, and decked with gold and precious stones and pearls, having a golden cup in her hand, full of abomination and filthiness of her fornication. And upon her forehead was the name written, Mystery Babylon, the Great, the mother of harlots and the abomination of the earth. तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने लाल रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सिंग थे, एक स्त्री को बैठा हुआ देखा। यह स्त्री बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। Now, rulers of darkness, spiritual wickedness in high places we have studied. हमने यह प्रधानताएं और बाकी शक्तियां और आत्मिक सेनाएं जो आकाश में, उनके बारे में देखा। In that spiritual wickedness, after we find another spirit, mystery, भेद बड़ा ministry of iniquity. इसके नीचे दुष्टता की आत्मिक सेना के नीचे है अधर्म का भेद। That is the beast with 10 horns and 7 heads. ये वही जीव है जिसके बारे में हम पढ़े हैं, 10 सिंग है, 7 सिर हैं। Along with that beast, there is another beast with 2 horns like a lamb. और इस जीव के साथ दूसरा एक और जीव है जो भेड़ की तरह 2 सिंग है। That is the spiritual prophetic movement. और यह है आत्मिक भविष्यवाणियों का एक जो बड़ा मूवमेंट शुरू हुआ। Prophetical movement. ये एक भविष्यवाणी करने वाली एक नया मूवमेंट है। Then along with that beast there is a harlot. और इस जीव के साथ एक वेश्या भी है। This is one world religion. ये एक विश्व धर्म का वेश्या। You may have heard in San Francisco they have the first cathedral of one world religion. आपने सुना होगा अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में एक विश्व धर्म का पहला कैथेड्रल है। It was established by Gorbachev, the former president of the Soviet Union. और ये पूर्व सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बाचोव के द्वारा स्थापित है।
All religious leaders and political leaders also joined with him. सारे संसार के धर्म के नेता और सारे राजनीतिक नेता उसके साथ मिले थे। Even President Bush of that time also joined with them. उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति बुश भी उसके साथ मिला था। Archbishop Desmond Tutu also joined with them. आर्चबिशप डेस्मंड टूटो भी उनके साथ मिला था। Christian leader. मसीह नेता है। So that is one world religion. ये एक विश्व धर्म है। In northern India you can find in some temples, you find all the photographs of all religions. आप उत्तर भारत में कई मंदिरों में धार्मिक स्थानों में देख सकते हैं सारे धर्मों के चिन्ह उधर लगे। Christian, Hindus, Muslims, Sikh and all Buddhists, all photos are सिख there. ईसाई मुसलमान सिख और बाकी सारे धर्मों के चिन्ह उधर हैं। That is a great movement. वो एक नया बड़ा मूवमेंट है। And then the fourth one is, the eighth one you have to see is 2 Corinthians chapter 11 verse 14 and 15. दूसरा कोरिन्थी 11वां अध्याय का 14 और 15 वचन। 2 Corinthians chapter 11 दूसरा कोरिन्थी 11वां अध्याय And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. 11 का 14 और 15। ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धारे तो कोई बड़े बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। That is Satan transformed into angel of light. ये शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में, Angel of light. ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में। That's what we read from chapter 11 verse 2 to 4. दूसरा कोरिन्थी 11 का 2 से 4वें वचन में हम उसके बारे में पढ़ते हैं। That is another Jesus, another spirit, another gospel. वो है दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा, दूसरा सुसमाचार। नीचे दिखता नहीं। ठीक है। You may not be able to see it. I will remove the chairs so that you can write Satan. आप लिख सकते हैं शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में, Another Jesus, another gospel, another spirit. दूसरा यीशु, दूसरा सुसमाचार, दूसरी आत्मा। ये 8वां नंबर। Friends, look at the list of the enemies we have to fight. प्यारे मित्रों, जरा हमारे जो दुश्मन की सूची जरा देखें। Number 1, Satan. सबसे पहला शैतान। Number 2, Lucifer. दूसरा है लूसीफर। Then principalities, archas. तीसरा है प्रधानों, अरखास। Then powers. अधिकारियों। Then rulers of darkness of this world. दुष्टता की आत्मिक दुष्ट शक्तियां, जो स्वर्गीय दुष्ट शक्तियां। Spiritual wickedness in high places. दुष्टता की आत्मिक सेनाएं। Mystery of iniquity. अधर्म का भेद। Then Satan moving as angel of light. शैतान जो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में। How many wicked powers are there? कितनी दुष्ट बड़ी शक्तियां हैं। During apostles' time, they had to fight up to this place. प्रेरितों के समय में 7वें नंबर तक के शक्ति से लड़ना पड़ता था। But it was very weak at that time. उस समय बड़ा कमजोर था। It just started. उस समय आरंभ हुआ था। He said, mystery of the iniquity is already working now. पौलुस कहता है अधर्म का भेद अभी ही कार्य कर रहा है। Now it has come, the time has come for the ministry of iniquity to reveal itself with full force. अब समय आ गया अधर्म का भेद अपनी पूरी शक्ति से प्रकट होने का। Holy Spirit is just blocking his way. पवित्र आत्मा उसके मार्ग को रोके हुए है। Then comes Satan, formed as angel of light, as another Jesus,
another gospel and another spirit. अब शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में वही है, दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा, दूसरा सुसमाचार। So this is not the time to look at the welfare of the believers or people. सो अब हमारा ये समय नहीं कि हम लोगों के आराम की चिंता करें, उनके बाकी शारीरिक बातों की चिंता करें। It is not the time to preach a comforting gospel. अब तसल्ली देने वाला सुसमाचार प्रचार करने का समय नहीं। Satan working with all force. शैतान अपनी पूरी ताकत के साथ कार्य कर रहा है। This is the time to enter into the dark kingdom of Satan. ये समय है कि शैतान के उस अंधकार के राज्य के अंदर प्रवेश करना। He has bound these people with fetters of iron. और उसने लोगों को लोहे के जंजीरों से बांध रखा, With religious fetters of iron. और धर्म के अलग अलग लोहे के जंजीरों से बांध रखा। If you look at the iron fetters of the religion, you can find how strong it is. आप धर्मों के लोहे के जंजीर देख लो तो आपको समझ में आएगा कितने शक्ति वाले हैं ये जंजीर। You just tell the person, come out, come out. आप जाकर सिर्फ व्यक्ति को बोलते हैं तू यीशु को स्वीकार कर आ जा, But you should be strong enough to break open that fetters from his neck. लेकिन आप में इतना बल होना चाहिए कि उस कैदी के गले से वो जंजीरों को तोड़ डालकर आजाद करें। You say, I told him many times to come out, but he is not able to come out. आप कहते हैं मैंने तो बहुत बार उसे समझाया लेकिन फिर भी आता नहीं है। Why? क्यों? You are not broken the fetter that is on his neck. आपने उसके गर्दन में जो जंजीर पड़े उसको तोड़ा नहीं है। You think that by your pleasing message and healing message he will come out. आप सोचते हैं शायद उसको खुश कराकर या तसल्ली के वचन बोलने से वो आजाद होगा। No. कभी नहीं। You have to break that fetter from his neck. आपने उस कैदी के गर्दन से वो जंजीरों को तोड़ना। Through gospel you get his permission. Okay, I want to come out. और जब सुसमाचार बोलते हैं तब वो व्यक्ति अपनी अनुमति इच्छा दिखाता है मुझे बाहर आना है। Who should break him out? उसको जंजीर को तोड़कर बाहर किसने निकालना? You. आपका काम है। It is the job of the servant of God. ये परमेश्वर के दास का कार्य है। It is the job of an elder. और ये कलीसिया के बुजुर्ग का काम है। It is the job of every believer. ये हर एक विश्वासी का काम है। We should break open that fetter. हमने उन कैदियों के जंजीरों को तोड़कर निकालना। For that this power from high is given. उसके लिए स्वर्ग से असीम सामर्थ दिया जाता है। So when you are clothed with that power, जब आप इस सामर्थ को पहने हुए हैं then you go. और तब जब आप जाते हैं You can break it open. आप इन जंजीरों को तोड़कर व्यक्ति को आजाद कर सकते But हैं। you are not clothed with power. लेकिन आपने वो सामर्थ का वस्त्र पहना नहीं। You have lot of brain ideas. आपके दिमाग में बहुत से ज्ञान की बातें हैं। You may go and put some massage and come out. आप इस कैदी को थोड़ा मालिश कर कर आ जाते हैं। That's why I said I am going to be very strict with the team members. इसलिए मैंने कहा मैं अपने टीम के सदस्यों से बड़ा कठोर हूंगा। Very strict. They are going to see it day after tomorrow. और कल या परसों तक उनको उसका नतीजा मालूम चलेगा। I want only those people who are strong enough to break open the fetters that's on the neck of people. मेरे साथ केवल उन्हीं की मुझे जरूरत है जिनके अंदर वो सामर्थ है जो लोगों के जंजीरों को तोड़कर आजाद कर सकते हैं। Not story, not cry. ये कहानी बोलने वाले, कथा बोलने वाले या आंसू बहाने वालों की नहीं। Not holding the neck and say, Lord, break it, break it, break it, break it. ऐसे नहीं कि जो कैदियों के जंजीर को पकड़ के प्रभु से विनती करे, प्रभु आजाद कर, आजाद कर। This power is given in this vessel. What for? इस शरीर के अंदर मिट्टी के बर्तन में असीम सामर्थ क्यों? To cry? या रोने के लिए? To plead? क्या विनती करने के लिए? But to break it open. पूरे अधिकार से वो जंजीरों को तोड़ने के लिए, संकलों को तोड़ने के लिए। What ministry now needed is a ministry of turning the world upside down. आज की जो सेवकाई की जरूरत है वो एक ऐसी सेवकाई जो इस पृथ्वी को बुनियाद से हिलाए और उलट पुलट करे। What Paul says. पौलुस क्या कहता है? 2 Corinthians chapter 10 verse 3 and 4. दूसरा कोरिन्थी 10 का 3 और 4 वचन।
2 Corinthians chapter 10 verse 3 and 4. दूसरा कोरिन्थी 10 का तीसरा और चौथा वचन। For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। The ministry is not to gather people for healing. सेवकाई लोगों की भीड़ को चंगाई के लिए इकट्ठा करने के लिए नहीं है। Ministry is not to preach prosperity message. लोगों को शारीरिक आशीषों का प्रचार करने की सेवकाई नहीं है। Ministry is not to give और meet the physical needs of the people. सेवकाई लोगों की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं है। The power from high has come to set the people free. स्वर्ग से सामर्थ जो उतरा है लोगों को आजाद करने के लिए उतरा है। To set the people free. लोगों को आजाद करने के लिए उतरा है। Not to tell about your wisdom. अपने ज्ञान की बातें बोलने के लिए नहीं। Not to tell about your greatness. और अपनी महानता के बारे बताने के लिए नहीं। Not to complain about people, they are not coming. और ये लोग विश्वास नहीं करते बोलकर बुड़बुड़ाने के लिए नहीं। But to go to them in the name of Jesus. बल्कि लोगों के पास यीशु मसीह के नाम में जाकर, Go into the dark corners. और शैतान के अंधेर कोणों में जाकर। How you go in the dark corners? शैतान के अंधेर कोणों में कैसे जाते हैं? Because you yourself is a light. क्योंकि आपके अंदर खुद ही ज्योति है। You are a light. आप ज्योति हैं। So where you are a light, go into the dark corner. जब आप जो ज्योति हैं अंधकार के इलाके में जाते हैं। Jesus said, you are the light of the world. प्रभु यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। First he said, I am the light of the world. सबसे पहले यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति Then हूँ। he said, you are the light of the world. उसके बाद प्रभु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। In the dark corners of enemy you go. और शैतान के अंधेर कोणों में आप जाते हैं। Break open the people. और लोगों को जंजीर से तोड़कर आजाद करते हैं। Whatever the price you may have to pay, you have to pay. चाहे कितनी भी कीमत देनी पड़े कीमत देते हुए। I thank God for sending me to the many strongholds in different parts of the world. मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं दुनिया के अलग अलग कोणों में शैतान के गढ़ों में जाने का मौका दिया। In China, Philippines, America, all the places in India. चाइना, फिलीपींस, अमेरिका, भारत में कई जगहों में। I know how I went into that dark places. मुझे खुद मालूम है मैं अंधकार के इलाकों में कैसे गया। I know how I entered into the strongholds of the enemy. मुझे मालूम है मैं किस प्रकार शैतान के गढ़ों के अंदर प्रवेश किया। But it is the power from high लेकिन ये स्वर्ग का वो असीम सामर्थ है that did all the work. जिसने सारा काम किया। If God was able to do with this old man, weak man, how much he can do with you young man. अगर परमेश्वर इस बूढ़े कमजोर व्यक्ति के द्वारा इतना कुछ कर सकता है तो हे नौजवान तेरे द्वारा वो कितना और कर सकता है। What do you need? आपको किस बात की जरूरत? Heavenly clothing, powerful clothing. असीम सामर्थ का वो कपड़ा है। God has given you this almost 1 month Bible classes. परमेश्वर ने आपको 1 महीने का वचन सीखने का मौका दिया। That is to prepare you to put on that cloth. ये किसके लिए था? ये सामर्थ का वस्त्र पहनने के लिए तैयारी था। The cloth is ready. वो सामर्थ का वस्त्र तैयार है। Those who are ready, they can get it. जो तैयार हैं वो आज रात पहन सकते हैं। Now, अभी it's your job. वो अब आपका काम है। I am just going to sit down here. मैं इधर ही बैठने जा रहा हूँ।
आमीन। Amen. Please listen patiently. ध्यान से सुने। While you are praying, God showed me through a vision different situations. जब हम प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने दर्शन में मुझे अलग अलग परिस्थितियों को दिखाया। Powerful heavenly suit is ready. शक्तिशाली स्वर्गीय वो ड्रेस तैयार है, वस्त्र तैयार है। Some have already put on it. कईयों ने उसको पहले ही पहन लिया, To now they put on it. अभी पहन लिया है। But to some, they are oversized. लेकिन कईयों के लिए अंगरखा का साइज बड़ा है। No. वो व्यक्ति कपड़े के हिसाब से व्यक्ति बड़ा है, कपड़ा छोटा। Their name is written on that. उस कपड़े में उनका नाम जिसके लिए वो तैयार है वो लिखा हुआ है। To some, the head is so big. कईयों का सिर बहुत बड़ा है, कपड़े के अंदर नहीं आएगा। They try to put it, but the head size is very big. पहनने की कोशिश करते हैं लेकिन सिर बहुत बड़ा है। I asked the Lord what it is. तो मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु क्या कारण है? The Lord said they use their brain in the ministry. प्रभु ने कहा ये सेवकाई में अपना दिमाग लगाते हैं। As long as they use their brain, this suit cannot be used. जब तक वो अपना दिमाग लगाएंगे ये कपड़ा वो पहन नहीं पाएंगे। To some, their neck is so big. कईयों का गर्दन बहुत बड़ा है, मोटा। I asked the Lord why. मैंने प्रभु से पूछा क्यों? They always keep looking this side and that side and this side and that side. ये हमेशा इधर उधर देखते ही रहते हैं। By looking here and there, their neck has become very big. इधर उधर देखते रहने के कारण उनकी गर्दन बहुत मोटी हो गई। To some, their body is so fat that suit cannot come in. कईयों का शरीर इतना बड़ा है, चर्बी चढ़ा हुआ है, वो वस्त्र को पहन नहीं सकते। I asked the Lord what it is. मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ये क्या है? Then the Lord said, it is their lust, desires. प्रभु ने कहा ये इनकी इच्छाएं, मोह, अभिलाषाएं हैं। Some hands are so big. कईयों के हाथ बड़े बड़े हैं। The dress is, if it is 3 inch, their hand is more than 10 inch. कपड़ा का गोलाई अगर 3 इंच है, उनका हाथ 10 इंच से भी मोटा है। I asked what it is. मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ये क्यों, क्या है? The Lord said, they do all sorts of things. They are not disciplined, nothing. Whatever they come before them, they start doing with their hands. प्रभु कहता है इनके जीवन में कोई क्रम नहीं, कोई अनुशासन नहीं है। जो भी सामने आए ये अपनी मर्जी से काम करते हैं। Then some's legs are so big कईयों के पैर बहुत बड़े हैं and long. और बहुत लंबे हैं। If the size of the suit is 4 feet, they are 8 feet long. कईयों के वो जो सूट का साइज अगर 4 फीट है तो इनके पैर 8 फुट लंबे हैं। He said they are those people who walk everywhere. They have no discipline at all. प्रभु की आत्मा ने बताया ये वो लोग हैं इनके जीवन में कोई क्रम अनुशासन नहीं है, जहां कहीं मन किया चले जाते हैं। I was pleading with the Lord. मैं प्रभु के सामने विनती कर रहा था, But if this is the condition, how the battle can continue? प्रभु अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो लड़ाई आगे कैसे बढ़ेगा? Then the Lord said, if they sincerely desire for it, fire of the Holy Spirit will make them to the size. प्रभु ने कहा अगर ये अपने आप को अनुशासित करते हैं, प्रभु का आत्मा वो कपड़े इनका The spirit, the fire of the Spirit. अगर पवित्र आत्मा का वो आग को काम करने देंगे तो इनका शरीर को उस वस्त्र के अनुसार साइज में ला देगा। The Lord says, if they allow the fire to come on them and ask them to burn, said they can go with this dress. प्रभु की आत्मा ने कहा अगर ये लोग विनती करेंगे, प्रभु तेरी आत्मा की आग हमारे अंदर जले, तो आत्मा का आग वो शरीर को सही साइज में ला देगा और इधर से जाते वक्त वो वस्त्र पहन कर जा सकेंगे।
I've seen some person with wounded leg and wounded hands, मैंने कईयों को जख्मी हाथ और जख्मी पैरों से देखा, lame. लंगड़े हैं। Lord said, if they submit their mistake, I'll make them whole right now. प्रभु ने कहा अगर वो अपनी गलतियों का इकरार करेंगे मैं उन्हें चंगा करूंगा। The Lord said, I wanted to do it today. प्रभु ने कहा मैं आज रात ही वो करना चाहता हूं। The Lord said, that's why I written their name on their clothes. प्रभु ने कहा इसलिए मैंने बड़ी इच्छा के साथ उस कपड़े में उनका नाम लिखा। It's for them. ये उनके लिए बनाया गया। If they get ready, they can go back with the dress tonight. अगर वो तैयार हो जाएं, आज रात वो वस्त्र जो उनके लिए तैयार है उसको पहनकर जा सकेंगे। It is the clothing of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा का वो वस्त्र है, That powerful clothing. वो शक्तिशाली वस्त्र। I plead with you, spend some more time in prayer. मैं आपसे विनती करता हूं थोड़ा समय और प्रार्थना में बिताएं। Ask the fire to burn you. पवित्र आत्मा का आग को आपके अंदर जलने दें। Lord, I do not want any other desire which is beyond the Holy Spirit. प्रभु मेरे अंदर पवित्र आत्मा के इच्छा के विपरीत कोई भी इच्छा नहीं चाहिए। All the desire I offer on the altar. प्रभु मेरी सारी इच्छाओं और अभिलाषाओं को मैं वेदी के ऊपर रखता हूं। I lay all my desires on the altar. प्रभु मेरी सारी इच्छाओं को मैं वेदी के ऊपर रखता हूं। Clothe me with that powerful cloth. प्रभु वो पवित्र आत्मा का सामर्थ का वस्त्र मुझे पहना दे। Continue prayer. प्रार्थना करना शुरू करें। I am not that clothing you. Amen. आमीन। I am not the person that clothes you. आपको वो वस्त्र पहनाने का काम मेरा नहीं। He is walking here. वो हमारे बीच में चल रहा है। He is walking here. वो हमारे मध्य में चल रहा है। He is walking here. वो हमारे मध्य में चल रहा है। प्रार्थना के बाद अगर आपको खाना खाने का मन नहीं है तो खाना मत खाइए। खाना बच गया और नाली में फेंकना पड़ा है तो भी खराब होकर फेंकना पड़ेगा तो भी ये चिंता मत कीजिएगा। अगर आपको कमरे में प्रार्थना करने के लिए आजादी नहीं है तो इधर में एक कोने में बैठकर प्रार्थना कर सकता है। चाहे भाई लोगो बहन लोगो, कमरे में आजादी नहीं है। मैं देख रहा हूं बहुत लोग प्रभु इंतजाम किया हुआ कपड़ा पहन रहा है। एक नहीं दो नहीं, कई लोग पहन रहा है। कई लोगों का हाथ ठीक हो रहा है, पाँव ठीक हो रहा है और बहुत घोड़े की तरह दौड़ने के लिए तैयार हो रहा है।
बहुत लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का आग जल रहा है, चर्बी पिघल रहा है, चर्बी हट रहा, इच्छाओं का चर्बी हट रहा। What I am saying is, many people are getting burned by the Holy Spirit. Their desires are being burned away. And they are trying to put on that cloth. Many people, amen, hold on. Many people, many come and put on, and size is not right, again keep it, then again pray, again come, doing it again and again, and finally putting on and getting more power. मैंने क्या देखा है, बहुत लोगों में आग पकड़ा हुआ है, जलकर साइज हो रहा है, पाव काट के छोटा हो रहा है, कपड़ा पहन के देख रहा है, फिर निकल के रख रहा है, फिर पहन रहा है, बाद में फिट होकर ललकारते हुए जा रहा है। अभी बोलने के लिए प्रभु बोल रहा है, प्रभु सुनिए, प्रभु बोल रहा है, the Lord says, first I'll say in English and then in Hindi, my son, you are a backslidden man, but I brought this cloth for you. I'm here to wash you. I'm here to clothe you again today, so that you may be used in my hands wonderfully. प्रभु मुझे बोल रहा है, बेटा बेटी तुम पीछे हटे थे, तुम बहुत गंदगी में फंसे हुए थे, लेकिन मैं तुमको धो रहा हूं, तुमको साइज, सुनिए, ये कपड़ा में तुम्हारा नाम लिखा है, ये तुम्हारा है, तुम्हारे लिए लाया है, तुम पहन लो। हम मिलकर एक गीत गाने जा रहे हैं, आनंद का तेल से अभिषेक किया। आमीन। सुनिएगा, बहुत लोग नया पहना है, कुछ लोग अभी भी बाकी है। आज रात भर पूरा मीटिंग चले रहे तो कोई बात नहीं। 145 हाँ, आमीन। गाओ। आनंद 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 है, अपनी मोहब्बत से हमें प्रेम किया। आनंद 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 है, अपनी मोहब्बत से हमें प्रेम किया। अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा है सौभाग्य। अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा है सौभाग्य। हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए। हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद आनंद
यीशु के लिए आनंद 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 है। प्रभु की स्तुति करना आनंद है। आनंद 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 है। प्रभु की स्तुति करना आनंद है। प्रभु की सेवा हम करेंगे सदा, ये हमारा है सौभाग्य। प्रभु की सेवा हम करेंगे सदा, ये हमारा है सौभाग्य। हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए। हालेलुया हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है। प्रभु के आगमन की खुशी है। आनंद 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 है। प्रभु के आगमन की खुशी है। ले जाएगा हमें ललकार के साथ, ये हमारा है सौभाग्य। ले जाएगा हमें ललकार के साथ, ये हमारा है सौभाग्य। हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए। हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है। सिय्योन जलाली में वास करेंगे। आनंद 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 है। सिय्योन जलाली में वास करेंगे। बाप के दाहिने हम बैठ जाएंगे, ये हमारा है सौभाग्य। बाप के दाहिने हम बैठ जाएंगे, ये हमारा है सौभाग्य। हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए। हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है। अपनी मोहब्बत से हमें प्रेम किया। आनंद 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 है। अपनी मोहब्बत से हमें प्रेम किया। अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा है सौभाग्य। अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा है सौभाग्य। हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए। हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है। आनंद के तेल से मसा किया है। आनंद 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 है। आनंद के तेल से मसा किया है। पवित्र स्थान में हमें दाखिल किया है, ये हमारा है सौभाग्य। पवित्र स्थान में हमें दाखिल किया है, ये हमारा है सौभाग्य। हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए। हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है। प्रभु की स्तुति करना आनंद है। आनंद 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 है। प्रभु की स्तुति करना आनंद है। प्रभु की सेवा
यीशु के लिए आनंद 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 है प्रभु की स्तुति करना आनंद है आनंद 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 है प्रभु की स्तुति करना आनंद है प्रभु की सेवा हम करेंगे सदा ये हमारा है स्वभाव हालेलुया प्रभु की सेवा हम करेंगे सदा ये हमारा है स्वभाव हालेलुया हालेलुया सदा गाएंगे हालेलुया हम प्रभु यीशु के लिए हालेलुया हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए आनंद 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 है प्रभु के आगमन की खुशी है हालेलुया आनंद आनंद है हालेलुया प्रभु के आगमन की खुशी है ले जाएगा हमें ललकार के साथ ये हमारा है स्वभाव ले जाएगा हमें ललकार के साथ ये हमारा है हालेलुया। स्वभाव हालेलुया। सदा हालेलुया। गाएंगे हालेलुया प्रभु यीशु के लिए हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए आनंद 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 है सिय्योन जलाली में वास करेंगे आनंद 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 है